ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اسٹریٹ کرائم کی. تو ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی واردات کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور چند دن بعد ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر ڈکیتی مزاحمت کے دوران جو ہے کسی شہری کو قتل کر دیا گیا. نہ جانے کتنے ڈاکٹرز، نہ جانے کتنے نوجوان مختلف جو کہ نوکری سے وابستہ ہیں، وہ انجینئرز، طالب علم، بہت سارے لوگ اب تک جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. اور معمولی مزاحمت کرنے کے اوپر ڈکیت جو ہیں، اس شہر کے ملزمان جو ہیں، وہ شہریوں کو، نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، ان کے سینے میں پیوست کر دیتے ہیں گولیاں. اب اس صورتحال میں اگر ہم صرف رمضان کی بات کریں تو جو فیکٹس ہمارے پاس اسٹیٹس آئے ہیں، وہ 11 شہریوں کو قتل کر دیا گیا ہے. اور رواں سال اب تک شہریوں کو مختلف علاقوں کے اندر جو تعداد جاں بحق ہونے کی ہے وہ 51 تک پہنچ گئی ہے. ایسے میں جہاں اقدامات کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں آئی جی سندھ کی جانب سے یہ جو ہے وہ بیان سامنے آتا ہے کہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے، ان کو یہ ٹاسک سونپ دیا گیا ہے. کسی بھی ڈکیتی کے اوپر وہ کام کریں گے. ساتھ ساتھ پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، اس کے اندر کہیں وزیر داخلہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی میڈیا بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے. تو دوسری جانب ایمچم پاکستان کے جو وزیر ہیں جو اس کے اوپر بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. تاہم عاطف رضا سے ہم اس وقت تفصیلات جانتے ہیں کہ اوورآل سچویشن کیا ہے. عاطف رضا، اوور ٹو یو. بتائیے گا ناظرین تک جو ہے وہ صورتحال اس وقت کس طرح تکلیف دہ ہے کہ گھر کی دہلیز پر ڈر لگتا ہے اب. جی بالکل علی، آپ نے صحیح کہا. اس وقت شہریوں کی صورتحال یہ ہے کہ نہ کوئی اپنے گھر کے باہر محفوظ ہے، نہ ہی کوئی بازاروں میں، نہ ہی کوئی سڑکوں پر کہیں محفوظ نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس روزانہ کی تعداد میں ایسی فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں جس سے شہری گھر سے باہر نکلتا ہے، کوئی اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر رہا ہے یا اپنی گاڑی اندر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا گھر کے اندر آنے کے لیے جیسے وہ بیل بجاتا ہے، دروازہ کھولنا ہوتا ہے، اتنے میں ملزمان آتے ہیں وہ سب کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں. اور یہ ایک کسی مخصوص ضلع کا نہیں ہے، یہ شہر کے تمام اضلاع میں اس طرح بآسانی وارداتیں ہو رہی ہیں. اور شہری جو ہے نہ صرف لوگوں سے چیزیں لوٹتے ہیں بلکہ مزاحمت کرنے پہ، فائرنگ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. ابھی اگر ہم پورے رواں سال کی بات کریں تو شہریوں کی جو تعداد ہے وہ 50 سے تجاوز کر گئی ہے جن کی جانیں جا چکی ہیں. اور صرف رمضان المبارک کے مہینے میں 20 روزوں کے دوران اب تک 21 روزے کو 11 افراد جو ہے نا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 100 کے قریب ہے. اچھا عاطف رضا، اس کے اوپر آئی جی سندھ کی جانب سے جی ہدایت کر دی گئی کہ اب ڈکیتی کی جو کیسز ہیں نا پرٹیکولرلی SIU دیکھے گی، تو کیا فرق پڑے گا؟ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بتائیے گا. علی، آپ کی جو یہ بات ہے نا کہ ڈکیتیوں کی کیسز SIU دیکھے گی، یہ ہمارا سیکنڈری آپشن ہے. پرائمری تو کام یہ ہے کہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا. اس کے لیے ابھی تک کوئی ایسا کسی کو ایکسٹراڈنری پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہے. تاہم ہم اس کو ایک مثبت قدم ضرور قرار دے سکتے ہیں کہ SIU اس کیس کو دیکھے گا، کیونکہ SIU کے اوپر جو ہماری اطلاعات کے مطابق زیادہ ذمہ داریاں نہ صرف ڈالی گئی ہیں بلکہ ان کی پرفارمنس دکھانے کے لیے بھی ان کو پریشر ڈالا جا رہا ہے. تاکہ SIU کے ہمارے یہاں ہم یہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہاں پہ اسٹریٹ کرمنل گرفتار بھی ہوتے ہیں، وہ مہینے 2 مہینے یا ہفتوں کے اندر ہی جو ہے وہ رہا ہو کے آ جاتے ہیں اور سارا ملبہ تفتیش کے اوپر چلا جاتا ہے. اگر ہم شعبہ تفتیش کی طرف جائیں تو وہ وسائل کا رونا روتے ہیں. ٹھیک اور ہے. یا پھر اکثر وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پولیس نے اصل ملزم کو پکڑا ہی نہیں تھا. تو عاطف رضا، اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی تو ہوئی ہے، اس پہ آپ کرائم رپورٹرز کے حوالے سے بولا گیا ہے کہ جی میڈیا جو ہے بڑا چڑھا کر بتاتا ہے. وزیر داخلہ ضیاء الحسن صاحب فرماتے ہیں، تو اس کو آپ رپورٹرز کیسا دیکھ رہے ہیں؟ علی، میں تو اگر اس بات کو ڈینائی کروں گا کہ ہم نے بڑا چڑھا کے کچھ بھی نہیں بتایا. اچھا. رمضان المبارک میں 11 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہم نے 11 افراد بتائے. اگر سندھ حکومت یا وزیر داخلہ اگر یہ کہہ دے کہ وہ 11 افراد سے کم ہے تو پھر یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ بڑا چڑھا کے بتایا ہو. یا اب تک 3 ماہ کے دوران یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 11 افراد مر گئے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ اتنی بڑی فگر تھوڑی ہے، 11 ہی تو مرے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں علی، یہ غلط ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن بڑھا کے چڑھا کے بالکل نہیں بتایا جا رہا. جبکہ اگر ہم اور آپ جو دن کا میڈیا پرسن بھی اگر اس کو دیکھیں تو علی ہمارے یہاں خبر بھی اسی وقت آتی ہے جب ڈکیتی لاکھوں روپے کی ہو. کسی کے 50-60 ہزار روپے چلے جاتے ہیں تو یہ خبریں نہیں چلتی. یہ خبریں نہ اخبارات میں چھپ رہی ہوتی ہیں نہ چینل پہ چھپ رہی ہوتی ہیں. بہت ساری رپورٹس ہی نہیں ہوتی، بہت سارے واردات تو رپورٹس ہی نہیں ہوتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل ایسا ہی ہے علی. ہمارے ڈکیتیوں کی وارداتیں بھی وہ رپورٹ ہوتی ہے جو لاکھوں میں ہو یا کروڑوں میں جائے. تو میں یہاں پر اس بات سے تو بالکل وہ کرتا ہوں کہ بڑا چڑھا کے بالکل نہیں، بلکہ ہمارے یہاں تو بہت سارے فیکٹ جو ہیں وہ نہیں چلتے ہیں. شہری 11 مارے گئے ہیں، 100 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. اگلا سال اب تک 50 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس میں کچھ بڑا چڑھا کے نہیں بتایا گیا. یہ ایگزیکٹ فگرز ہیں
जिनकी बॉडी हॉस्पिटल में आई है, जिनकी मेडिको लीगल बनी है, और यकीनी तौर पर आप और हमारे सामने सबने मीडिया में रिपोर्ट किया है, जिनके वर्षा भी सामने आए हैं। जिनके वर्षा सामने आए। बहुत शुक्रिया। आतिफ रज़ा में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये ओवरऑल सिचुएशन है जो इस वक्त नाजरीन शहरियों को इसका सामना करना पड़ रहा है, और इसके ऊपर जो है वो हम बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि MQM पाकिस्तान से सलमान मुजाहिद बलोच है, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि जानें, क्योंकि वो एक तो एडवोकेट भी हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि इसका हल क्या है। इक़दामात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये माजी में भी होती रही हैं इस तरह की बातें कि जी हमने कमेटियाँ तो तश्कील देनी हैं, मगर असल काम जो है वो मुकम्मल तौर पे इस तिजारती मरकज़ को, इस तिजारती हब को, इस माशी हब को कैसे सेव किया जाए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका ताजरों का है, उनको कैसे सेव किया जाए। जो शहरी रोज़गार के लिए अपनी हक हलाल की कमाई कमाने निकलता है, उसको सेफ कैसे किया जाए। ख़वातीन हैं, बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं, वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए निकलती हैं, उनको सेफ़ कैसे किया जाए। और सबसे बढ़कर कि इस पूरे तिजारती और माशी हब के बसने वाले, रहने वालों को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ कैसे फ़राहम किया जाए। ये बहुत सवाल है जो बिल्कुल इस सीधे और सादे हैं, जो इस वक्त हर शहरी के जहनों में उठ रहे हैं, और जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है वो उनको दिखाई नहीं देता, वो उनको महसूस नहीं होता, और वो ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुश्किल में दिखाई देता है। ऐसा महसूस होता है कि ऐसी कार्रवाइयाँ जो है वो हो रही होती हैं, और ऐसा लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं, शहर लवारिस है। इसके ऊपर भी पूछते हैं, बात करते हैं। MQM पाकिस्तान से सलमान मुजाहिद बलोच साहब हैं। अच्छा सलमान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी ना स्ट्रीट क्राइम को बड़ा चर्चे में है। वज़ीर दाखिला साहब ने बात की कि जी मीडिया ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाता है। अब तक 51 लोग जो हैं वो मौत के घाट उतार दिए गए हैं। इन तमाम चीज़ों को कैसा देख रहे हैं? फिर MQM पाकिस्तान की जानिब से भी बयानात आ रहे हैं, क्या होगा आगे? जी सलमान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सलमान मुजाहिद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सलमान मुजाहिद साहब से रब्ता मेरे ख़्याल से जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। वो कोशिश कर रहे हैं टीम के लाइन अप किया जाए ताकि इसके ऊपर एक मौक़िफ़ आए, क्योंकि कराची के लोगों ने वोट दिया है। उनके उनको सवाल रखेंगे, अलबत्ता गो के ज़िम्मेदारी वज़ीर दाखिला पीपल्स पार्टी से हैं, मगर एक वोटर जो अपनी पार्टी, जिस भी पार्टी को वोट देता है, वक्त बजाने पर होता है कि उनसे सवाल करें, जी हमने आपको वोट दिया इसलिए कि आप बेहतरी लेकर आएँ, आप क्या कर रहे हैं। और MQM पाकिस्तान की जानिब से क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, सिर्फ बयानात की हद तक हैं, या वाकई में कोई अमली इक़दामात ऐसे होंगे जिससे फ़ायदा जो है एक आम आदमी को पहुँचता दिखाई दे। इसके ऊपर बात करनी है। सलमान मुजाहिद बलोच साहब अगर हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लेते हैं तो उनसे ये सवाल करते हैं, क्योंकि इस वज़ीर दाखिला साहब के बयान के बाद भी जो है वो सामने आया है कि इसके ऊपर इस तरह ना समझा जाए, और इस तरह ईद के बाद की भी बातें हुई हैं कि जी ईद के बाद जो है सूरत हाल होगी। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे, टेक्निकल बुनियाद की वजह से अब तक जो है वो लाइन पर नहीं आ सके। नाज़रीन, कोशिश करिए हमारी टीम कि उनको लाइन पे लिया जाए, उनसे पूछा जाए, क्योंकि ओवरऑल बड़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल है। अभी जो एक सोशल मीडिया पे आपने एक वो देखी होगी स्टेटस जो चल रहा है, उसके अंदर मेरे बेटे को जो है वो डकैतों ने मार दिया, उसका इंतकाल हो गया है, वो बड़ा वायरल है। वो बड़ी किसी बात की जो तकलीफ़ दे स्टेटस वो चल रहा है, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? सलमान साहब, इस शहर को स्ट्रीट क्राइम के हवाले कर दिया गया है, शहरी समझने पर मजबूर हो गए हैं, कैसा देख रहे हैं? बयानात तो आ रहे हैं, अमली इक़दामात क्या होने चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अली रज़ा जी। देखिए अली रज़ा, अमली इक़दामात हमें कोई नज़र नहीं आ रहे जिनका काम है क्राइम को कंट्रोल करना, क्रिमिनल को ख़त्म करना, क्राइम को ख़त्म करना, तो वो ये काम। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब से ये नए इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत आई है, जी हेलो, मेरी जी आवाज़ आ जी रही जी है? बिल्कुल आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रज़ा, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी शहरी मुतमईन नहीं है। कराची शहर का ना बच्चा, ना बड़ा, ना कोई खातून, ना औरत, कोई मुतमईन नहीं है। चाहे वो गरीब है, मिडिल क्लास है या अमीर है, हर कोई इस खौफ में घर से निकलता है कि अभी हम निकलेंगे, अभी हम बैंक से निकलेंगे, अभी हम घर से निकलेंगे, कोई ना कोई डाकू आ जाएगा, मजामत करेंगे या नहीं करेंगे, फिर भी लूटने के बाद भी गोली मार देगा। मैं समझता हूँ कि जिनका काम है क्राइम को कंट्रोल करना, जिनका
आईनी और कानूनी फर्ज है, पहले हुकूमत का है, उसके बाद पुलिस का है, उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, इदारों का है। लेकिन कोई भी अपना काम मुकम्मल तौर पे नहीं कर रहा, ना ही क्रिमिनल को पकड़ा जा रहा है, ना ही क्राइम को ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है। बल्कि मैं तो इसको इस बात से टेक करता हूँ कि मैं तो ये देख रहा हूँ एज ए ऑब्जर्वर, एज ए रिहायशी ऑफ कराची, एज ए सियासी कारकुन, कि जब से ये नई पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आई है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि लाइसेंस दे दिया गया है कि मार दिया जाए। हल क्या है सलमान मुजाहिद बलोच साहब, हल क्या है इसका? हल क्या है फिर? बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बयान ये दिया, उसके बाद उसके बयान के ऊपर रद्द अमल आ गया। इस चीज़ से आगे बढ़कर शहरियों को क्या मिल सकता है? एक आम आदमी के लिए क्या हो रहा है? क्या पॉलिसी बनाई जा रही है? किस तरह कोई बात भी हो रही है आम शहरी की या नहीं? इसके ऊपर भी तो बताएं ना। अली रज़ा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप क्राइम को देखते रहे हैं, आप क्राइम की बीट करते रहे हैं, आप क्राइम की सहाफ़त करते रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके पास ज़्यादा बेहतर जो है वो डेटा है। अभी आपका सहाफ़ी बता रहा था कि मेरे ख्याल में तो कोई प्लान मुझे नज़र नहीं आ रहा, कोई प्लान ऑफ एक्शन नज़र नहीं आ रहा, ना हुकूमत की तरफ से ना पुलिस की तरफ से। सिर्फ ये कह देना कि SIU इसके डकैती के केसेस देखेगी, ये कहा है कि SIU डकैती के केसेस देखेगी। देखें, जो आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है वो मुख्तलिफ केसेस की इन्वेस्टिगेशन को देखता है। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आप रुकने असेंबली भी रहे हैं सर, आप रुकने असेंबली भी रहे हैं, आप इस्लामाबाद भी जाते रहे हैं, आप दीगर पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी जाते रहे हैं। ये क्या है कि कराची के अंदर एक जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास है वो दीगर शहरों में भी होता है? देखिए, होता तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन इस तरह से नहीं होता जिस तरह से कराची में भाई प्लानिंग हो रहा है। अच्छा। वहाँ लूटा जाता है, डकैती तो की जाती है, लेकिन मारा नहीं जाता। हम तो पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि यहाँ तो पॉइंट ब्लैंक करके कराची के पढ़े लिखे नौजवानों को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। मैं तो ये समझता हूँ कि जब से ये सीन में दोबारा से कच्चे के डाकू दोबारा से एक्टिव हैं, दोबारा से कत्ले आम शुरू किया है, दोबारा से जो है वो नो-गो एरिया बना दिया है, सीन हुकूमत का फेलियर नजर आता है, सीन पुलिस का फेलियर नजर आता है। वहाँ पे कोई सीन हुकूमत की रेट नहीं है, कोई सीन पुलिस की रेट नहीं है। अगर वहाँ के लोगों से, मकामी लोगों से, आप कंदकोट के लोगों से, शिकारपुर के लोगों से, कच्चे के वहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करें, वो कहते हैं सिर्फ खबरों में तो पुलिस ये कहती है कि हमने एक्शन किया, हमने जो है कार्रवाई की और डाकू जो है फरार हो गए। भाई कैसे डाकू फरार हो जाते हैं? आज वजीर आला सिंध का बयान मैंने देखा, वो कह रहे कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि डाकुओं के पास फौजी असला कहाँ से आ रहा है। तो ये तो आपके सोचने का काम है, ये तो आपके इन्वेस्टिगेट करने का काम है। जब आपको इतना ही नहीं पता असला कहाँ से आ रहा है, तो सूबे पे आप हुकूमत किस माने में कर रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ, शेर कराची की अगर बात कर लें, शेर कराची को तो इन्होंने डाकुओं के हवाले कर दिया है, ठेके पे दे दिया है। अब अगर आवाम पकड़ती भी है डाकुओं को तो पुलिस उसको बचा के ले जाती है। फिर अली रजा, आजकल एक जुमला बहुत चल रहा है थानों में कि यार इसको छोड़ दो, ये मेरे गाँव का है, यार इसको छोड़ दो, ये मेरे मलकवाल का है। ये जो गैर मकामी जो आए हुए पूरे पाकिस्तान से, चाहे उसमें अफगानी है, चाहे दूसरे पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आए हुए हैं, यहाँ पे गैर मकामी पुलिस से कराची में इस नुक्ते को हम MQM पाकिस्तान कब से उठाती आई है कि जब तक कराची में मकामी पुलिस का निज़ाम राइज नहीं होगा, जब तक जो है KPK की तरह, पिशावर की तरह, लाहौर की तरह, बलूचिस्तान की तरह वहाँ के मकामी लोग पुलिस में नहीं आएंगे, कराची में ये होता रहेगा। जितनी भी भर्ती हुई है पुलिस में, उसमें सिंध के, अंदरूनी सिंध के लोग आए हैं या KPK के या पंजाब के लोग आए, कराची का एक भी लड़का शायद पुलिस में नहीं आया। ये है असल वजह। वो क्या कहते हैं, मेरे गांव का, इसको छोड़ दो। फिर अभी ये भी कैसे सामने आए हैं कि डकैतों ने ये बयान दिए हैं कि जी फला ASI, फला सब इंस्पेक्टर हमसे हिस्सा लेता है और कहता है मेरे इलाके में जितनी डकैती इस तरह की चीजें भी वायरल हो रही हैं। बिल्कुल, पुलिस पार्टनर इन क्राइम में, पुलिस पार्टनर इन क्राइम में, जब तक पुलिस का किबला दुरुस्त नहीं होगा। अब हमारे वजीर दाखिला जिया नज्जार साहब जो है एक वकील भी हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन वो नए वजीर दाखिला बने, उनको जो बताया कि उन्होंने कह दिया, लेकिन जो कराची में मरने वाले हैं, जो शहीद हो गए लड़के, किसी की मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपको कराची के शहरियों के जख्मों पे मरहम रखने की जरूरत है, कराची को डाकुओं से निजात दिलाने की जरूरत है, कराची के शहरियों में एहसास जिम्मेदार, एहसास सिक्योरिटी का एहसास दिलाने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि ये जो आपके जो बयान आते हैं सिर्फ लफ्ज़ ही है, आपका एक्शन नजर आना चाहिए, बहुत आपकी विल नजर आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे कि जी एक तो लोकल पुलिसिंग के ऊपर उन्होंने इशारा किया कि जी लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए, साथ साथ वो बता रहे थे कि जी संजीदगी का मुजाहरा जो है वो ज़रूरी है, उसके बगैर चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। अब देखते हैं मुस्तक़बिल करीब में जो है वो क्या सूरत हाल जो है वो बनती है और किस तरह चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाती भी हैं या नहीं है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाज़िर होते हैं।